Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So before starting this chapter, I want to request one thing. Please stay at home, don't go out because third wave is almost about to come and I don't want anyone to be get sick because of this COVID-19, right? So thank you so much. So आज हम start करते हैं next topic of this chapter 4 heat NCERT class 7th. Okay, so in last video what we studied conduction. We'll see conduction only happen when collision of particles take place, right? When two molecules and atom collide and transfer heat to each other, but they did not move from their places, right? We'll already covered this topic, right? हमने देखा था कि बहुत सारे जो ये atoms होते हैं solid में ये ऐसे पास पास होते हैं, right? And they all are very close to each other. So what happened? Suppose there is a source of light, like heat is coming from here. This molecule heat up and this molecule transfer this heat to this molecule because they were colliding. When there was so much heat na, they become very active. Okay, all the molecules are very active and this molecule is very active, this molecule is very active, and this molecule transfer heat to other molecule, and then this molecule transfer heat to this molecule, this molecule, this molecule, and so on. This process take place and this whole box become heated, right? So this process is known as conduction, when there is no movement and with the help of collision only, with the help of vibration only, heat is transferring from one molecule to another molecule, right? We covered this topic. What were the examples? All the metals are good conductor, like copper wire, aluminium, silver glasses, gold. All these are very good conductors because they conduct electricity from them. ठीक है, conduct heat or electricity from them. If suppose this is a copper wire and I heat this wire from this side, okay, so then it transfer heat to this side also, and this whole conductor or whole copper wire heaten up. Okay, this process is conduction. Clear? We'll revise it, and now we're gonna come on to convection. Convection basically is transfer of heat. मतलब molecules take heat up, the molecules heat up, and all the surroundings were heat up because of them, because they transfer, right? Like, let me just conclude this in a simple way. Suppose this is a room, okay, and there is air all over, and this is a room, so there is AC, okay, this is AC, okay. So cool air is coming from this AC and this room is already very hot. So what happened? This cool air, ये सब जो molecules हैं इनको cool कर देगी, fine, and this is hot air. Then cool air जो होती है ना वो heavy होती है, it rises up, cool air rises up and this molecule were come closer to AC, ठीक है, and this due to which these molecules were cool up and these molecules were already cooled. So this circulation, what is happening? Molecules were circulating, molecules were moving, ठीक है. तो ऐसे ही हमारे रूम में भी होता है. आप इमेजिन करो, मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ. देयर इज अ रूम, ओके, एसी हमेशा कहाँ लगा होता है? टॉप पे लगा होता है, बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप. एसी को ऊपर लगाने का या विंडोज पे लगाने का भी एक उसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज हमें कौन सी प्रोसेस करानी है? कन्वेक्शन करानी है. तो हॉट एयर क्या होगी? हॉट एयर हमेशा ऊपर होती है, जो हमारा रूफ होती है उसके पास हॉट एयर होती है और नीचे कूल एयर होती है, ठीक है. तो अगर ऊपर वाली एयर देखोगे आप तो वो ज़्यादा हॉट होगी, तो वो हल्की है तो वो ऊपर चली गई, कूल एयर नीचे आ गई. इन द सेम वे जब एसी में से, सपोज यहाँ पे एसी है तो एसी में से हवा आएगी और वो ऊपर की जो हॉट एयर है उसको ठंडा कर देगी, वो एयर हैवी हो जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी और नीचे की जो हॉट एयर है फिर वो ऊपर चली जाएगी, फिर वो कूल हो जाएगी. तो ऐसे क्या होगा? पूरा जो कमरा है वो क्या हो गया? कूल हो गया. सो दिस इज द कन्वेक्शन प्रोसेस एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है, ठीक है. मैं अभी आपको और एग्जांपल्स दूंगी तो आपको बहुत डिटेल में समझ आएगी कन्वेक्शन है क्या. अब कन्वेक्शन की डेफिनेशन देखो. ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और फिर वो पूरी सराउंडिंग को क्या कर रहे हैं? पूरे कंटेनर को, पूरी सराउंडिंग को, जो भी टेम्परेचर उनके पास है वो उसको वैसा ही बना रहे हैं. अगर वो मॉलिक्यूल्स गर्म हैं तो वो सब कुछ गर्म कर देंगे, अगर वो मॉलिक्यूल्स कूल हैं तो वो सारे एरिया को क्या कर देंगे? कूल कर देंगे, ठीक है. तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग, ठीक है, बाय सर्कुलेटिंग इट थ्रू एयर और लिक्विड. बिकॉज सॉलिड तो बहुत टाइटली पैक्ड है, वो तो मूव होगा नहीं, तो सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता, सॉलिड में कंडक्शन होता है. कन्वेक्शन किस में शो करेंगे?
होता है एयर में एंड लिक्विड में, ठीक है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, ठीक है, उसके नीचे क्या करा, फ्लेम जला दिया, और पानी क्या हुआ, पहले बॉटम से गर्म होना स्टार्ट हुआ, और वो मॉलिक्यूल गर्म हुआ, आपको पता क्या करेंगे, वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो हल्के हो गए, वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर आएगा, फिर जो ऊपर और ठंडे रह गए वो नीचे आएंगे। तो ऐसे सर्कुलेशन होते होते क्या होगा, पूरा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो वो कंटेनर गर्म हुआ, पानी गर्म करते हुए जो वो कंटेनर गर्म हुआ, वो क्या है, वो कंडक्शन है। आपको समझ आई, दोनों फिनोमेना हमें एक ही में देखने को मिल रहे हैं। पानी जो बॉईल हो रहा है वो कन्वेक्शन शो कर रहा है, और जो कंटेनर गर्म हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्टर है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम का बना है, तो वो कंडक्शन शो कर रहा है, वो पूरा हीटअप हो गया। क्यों हीटअप हुआ, आपको प्रोसेस पता है, कोलिजन हुई, कोलिजन से वो पूरे उसको हीट ट्रांसफर करी, और पूरा जो कंटेनर था हमारा वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। तो ये होती है हमारी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, बॉइलिंग वाटर मैंने आपको बता दिया, ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड क्या एक्ट करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो हमारे सारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। सेल्स हैं वो क्या है, सबका टेम्परेचर एक जैसा है, क्योंकि वो सर्कुलेट कर रहे हैं। ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है, हार्ट हेल्प करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फिर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो सर्कुलेशन हो रही है वो क्या शो कर रही है, कन्वेक्शन फिनोमेना, ठीक है। एयर कंडीशनर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कन्वेक्शन अवन, कन्वेक्शन अवन आपने देखा होगा, आप अपने अवन में ध्यान से जाके देखना कभी, उसमें कन्वेक्शन का मोड भी होता है। कन्वेक्शन क्या होता है उसमें, कि हम वो बेकिंग के लिए या फिर केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब बेकिंग करनी होती है हमें, तो हम कन्वेक्शन मोड पे डाल देते हैं, तो उसमें से हॉट एयर निकलती है। वो हॉट एयर क्या करती है, पूरे केक को इवनली कुक होने में हेल्प करती है, क्योंकि बेकिंग में हमें उसे पकाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उन चीज़ों को इतना उनको हमें इतना कुक करना है कि वो क्या हो जाए, वो राइज अप हो जाए, ठीक है। वो सारे आपस में ब्लेंड तो है ही ऑलरेडी, बस वो राइज अप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या देते हैं उसको, बस हॉट एयर देते हैं। तो वो भी क्या है, कन्वेक्शन फिनोमेना है, ठीक है। हॉट एयर बैलून, जो हॉट एयर बैलून, अगर आपने किसी ने कभी ट्रैवल किया हो हॉट एयर बैलून में, तो वो क्या है, वो भी एक फिनोमेना है, किस चीज़ का, कन्वेक्शन का, ओके। रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है, एक जगह से हीट आती है और वो पूरे रेफ्रिजरेटर को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। तो वो भी क्या है, सेम एयर कंडीशनर वाला फिनोमेना, सेम बिल्कुल, ओके। ब्रीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ब्रीज, ओके। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत देखा है जब हम कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, जो सी के पास वाले एरिया होते हैं, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, जो हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, इसको हम पूरी को क्या बोलते हैं, जो वी शेप की हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, ये क्या है, यहाँ पे सी है पूरा, यहाँ पे हमारा सी है। इधर कौन सा सी है, इधर अरेबियन सी है, दिस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, राइट। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में कुछ फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीज। ब्रीज वर्ड का मतलब होता है जेंटल विंड्स, ठीक है। जेंटल विंड ब्लो करती हैं। जो भी लोग वहाँ पे गए हैं, कोस्टल एरिया के पास गए हैं ट्रैवल करने, घूमने के लिए, स्पेशली जैसे मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो कोई बीच है नहीं, बट जो कोस्टल एरिया में ऑलरेडी रहते हैं उनको इस फिनोमेना के बारे में पता है, और जो घूमने गए हैं उन्होंने भी इसको फील किया है। जैसे मैं कभी कोस्टल एरिया में नहीं गई, तो मैंने ये फिनोमेना कभी फील नहीं किया, बट इसके बारे में मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी है जानने की, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, समझा, और अब मैं आपके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ, और आपको भी कुछ न्यू आइडियाज़ हों, आपने कुछ बेटर फील किया हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो अब हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो है ब्रीज। ये जो पूरा फिनोमेना है ये किसकी वजह से हो रहा है, कन्वेक्शन की वजह से। और कन्वेक्शन का सोर्स क्या है, जो हीट दे रहा है वो क्या है, हमारा सन है, ठीक है। तो उसका सोर्स क्या है, इस फिनोमेना का सन है। बेसिकली इस फिनोमेना होता क्या है, दो टाइप के ब्रीज हैं ये, ठीक है। एक ब्रीज को हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। एक ब्रीज का नाम है हमारे पास सी ब्रीज, मतलब सी से जेंटल हवाएं आ रही हैं, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सी से जेंटल हवाएं आ रही है। जेंटल हवा कैसी लगेंगी, अगर गर्म हवा आपको लग रही है वो आपको जेंटल फील होगी, या ठंडी हवा, ऑब्वियस सी बात है ठंडी हवा। तो ठंडी हवा कैसी है, जेंटल विंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सी से ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रखेंगे तो हमें फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें एक बार वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लैंड ब्रीज, ओके। तो अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। फिर लैंड से ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है ये देखते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ठीक है। सी ब्रीज क्या है, देखो
कि हमें पता है, जैसे मैं डायग्राम से समझते हैं हम, ठीक है, बहुत आराम से। जैसे ये मैंने बाइफर्केशन कर दी, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो पेड़ हैं, ओके, ये सब पेड़ हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लैंड है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास सी है, ओके, क्लियर, ये लैंड है, ये सी है, यहाँ पे ट्रीज है, ये सी ब्रीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं हम पहले, ओके। इधर क्या है, हमारे पास कंटिन्यूअस सोर्स है, सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ हीट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सन, ठीक है। सन से क्या हो रहा है, लैंड भी गर्म हो रहा है और सी भी गर्म हो रहा है, ठीक है, लैंड भी हॉट हो रहा है, सी भी हॉट हो रहा है। आपको पता है कि दिन के टाइम में कौन जल्दी हॉट होता है, ये आप कैसे याद रख सकते हो, डेजर्ट से। डेजर्ट क्या होता है, गर्मी, जब दिन होता है तो क्या होता है, बहुत गर्म होता है, क्यों, क्योंकि जो सैंड है, जो सॉइल है, वो बहुत जल्दी हीट को ट्रैप करती है। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। इस टाइम पे क्या हुआ, दिन का टाइम है, ये सन है, तो लैंड क्या हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है सी से, सी भी गर्म हो रहा है, बट सी के कंपेयर में लैंड ज़्यादा गर्म हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हॉट एयर है वो हल्की होती है, तो वो राइज करेगी, तो हॉट एयर क्या करेगी, यहाँ लैंड की जो हॉट एयर है वो सी की तरफ मूव करेगी, सी की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस हो गया, यहाँ पर कोई हवा नहीं है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो सी की ठंडी हवाएं हैं वो क्या होंगी, वो लैंड की तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से जो हॉट एयर थी, जो लैंड की हॉट एयर थी, लैंड हॉट है ज्यादा, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ हीट, ठीक है, यहाँ की जो हीट है वो मूव कर रही है सी की तरफ, ठीक है, और सी की जो कूल एयर है वो मूव कर रही है लैंड की तरफ, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह हो गई, यहाँ पे कोई हवा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ही हवा हो गई, ठंडी हवा भी यहाँ पे, गर्म हवा भी यहाँ पे, तो कैसे बैलेंस होगा, तो वहाँ जो सी की ठंडी हवा है वो क्या होंगी, लैंड की तरफ मूव करेगी। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब आप कभी भी कोस्टल एरिया में जाओ, अब आप इसके बाद कभी भी कोस्टल एरिया में दोबारा से ट्रैवल करो, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो कोस्टल एरिया में जो सारे घर होते हैं, उन सबकी जो विंडोज़ होती हैं वो सी की तरफ फेसिंग होती हैं, और वो दिन में अपनी विंडो खोल के रखते हैं, क्योंकि सी से ठंडी हवाएं आती हैं, ताकि उनका घर भी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो आपको अब समझ आया कि वो ठंडी हवा कैसे आ रही है, वो इस फिनोमिना से आ रही है, सी ब्रीज की वजह से आ रही है। क्लियर हो गया आपको एकदम। तो ये फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, दिन में होता है, तो इसको हम डे ब्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज एकदम क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अगर आपको सी ब्रीज अच्छे से समझ आ गया तो लैंड ब्रीज तो बहुत ही आसान है फिर, ठीक है। लैंड ब्रीज में क्या है, सेम चीज़ है, देखो लैंड ब्रीज, लैंड से ठंडी हवा आ रही है, क्या होगा, ये सेम चीज़, ये हमारा सी है, ओके, ये हमारा लैंड है। अब क्या होगा, ये तो दिन में हो रहा था, ठीक है, दिन में हो रहा था, ये कब होगा, रात में होगा। तो यहाँ पे अब क्या आ गया है, मून आ गया है, पर मून से कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हमारा लैंड तो ऑलरेडी ठंडा हो गया, हमें पता है जैसे ही सन जाता है लैंड क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बट सी अब गर्म है, लैंड के कंपेयर में अब क्या है, सी हॉट है। तो अब क्या है, सी में सी हॉट है और लैंड क्या है, कोल्ड है। तो अब क्या होगा, आप बताओ, आपको पता है, अब सी से गर्म हवाएं कहाँ आएंगी, लैंड की तरफ, सी से गर्म हवा आएंगी लैंड की तरफ। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, तो जो लैंड की ठंडी हवाएं हैं, लैंड में कोल्ड एयर है, वो जाएगी सी की तरफ बैलेंस आउट करने के लिए। तो सी से हॉट एयर आएगी लैंड की तरफ, और जो लैंड की कोल्ड एयर है वो जाएगी सी की तरफ। तो लैंड पे जो कोस्टल एरिया पे घर है, आप सोचोगे यार उनके घरों में तो अब गर्म हवा आ जाएंगी, तो अब वो क्या करते हैं, रात को अपनी विंडोज शट कर लेते हैं, ठीक है, रात को अपनी सारी विंडोज, अपने डोर जो भी कोस्टल सी की साइड फेसिंग है वो सब उनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनोमिना लैंड ब्रीज का। और ये दोनों फिनोमिना हो किसकी वजह से रहे हैं, सन की वजह से। और कौन सी वो प्रोसेस है जो कर रही है ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन। और इसमें आप देख रहे हो कि पूरी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मैंने बताया ना, इसमें सर्कुलेशन होता है, इसमें मूवमेंट होता है, इसलिए कंडक्शन से डिफरेंट है एकदम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन पूरा डिस्कस। हमने कन्वेक्शन के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल कर लिए जो आपकी बुक में है भी नहीं उस लेवल तक की, कि आपको समझ आए कि कन्वेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और आप खुद भी थोड़े और फाइन करना, और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन कौन से डिफरेंट फिनोमिनास पता चले, ठीक है। एक हॉट एयर में बैलून का मैंने आपको बताया, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आई होप। हॉट एयर में क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा बैलून होता है, आपने देखा होगा, उसके यहाँ पे नीचे सिलेंडर लगा होता है, और सिलेंडर से क्या होता है, गर्म हवा निकल रही है। तो गर्म हवा आपको पता है लाइटर है, तो उसने क्या किया, पूरा बैलून फिल कर दिया, और बैलून क्या हो गया, हल्का हो गया, गर्म हवा से भर गया, हॉट एयर से भर गया। तो अब वो हल्का हो गया, तो वो क्या करेगा, आसमान में उड़ जाएगा, और उसके नीचे हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम पूरा व्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हॉट एयर भी इसी जो कन्वेक्शन प्रॉपर्टी है इसी के ऊपर वर्क करता है। जो ब्रीज है वो भी कन्वेक्शन की वजह से हो रही है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।